آج دیکھنے کے لیے شکریہ. میں دعا کرتی ہوں کہ آج کا پیغام آپ کی زندگی کو بدلنے میں آپ کی مدد کرے گا اور آپ کے سوچنے کے انداز کو بھی بدل دے گا اور آپ کی روح کو تازہ کرے گا. اگر آپ پاسٹر ڈوئن کی نوٹس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دی گئے QR کوڈ کو اسکین کریں. یہ آپ کو ہماری ایپ پر بھی مل جائے گا. کیا آپ جانتے ہیں کہ واس میں لکھا ہے کہ روپیوں سے سب مقصد پورے ہوتے ہیں. اور آج پاسٹر ڈوئن یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ پیسہ کیا خرید سکتا ہے اور کیا نہیں, اور ہمیں بھی اپنا پیسہ کہاں لگانا چاہیے. آئے شروع کرتے ہیں. چند ہفتے پہلے ہم سلیمان اور اس کی حکمت کے بارے میں بات کر رہے تھے. اب سلیمان کے بارے میں میرے لیے دلچسپ بات یہ ہے کہ بائبل کہتی ہے کہ خدا اس پر 2 بار ظاہر ہوا اور پھر خدا واقعی سلیمان سے ناراض ہوا, کیونکہ اگرچہ وہ اس پر 2 بار ظاہر ہوا پر اس نے اس حکمت کو نہیں سنبھالا جو اسے خدا نے دی تھی, اور اس کا دل زندگی کے اس حصے میں خدا سے دور ہو جاتا ہے اور پھر وہ خدا کے پاس واپس آتا ہے. لیکن وہ اب بھی ایک طرح سے پریشان ہے. اور سلیمان نے واقعی بائبل کی 3 کتابیں لکھی ہیں. امثال کی کتاب بائبل کے بالکل بیچ میں, زبور, پھر امثال ہے, اور اس کے بعد آپ کو وائس کی کتاب ملتی ہے جسے سلمان نے لکھا, اور پھر غزل و غزلات. اس وقت کے دوران جب اس نے واز کی یہ کتاب لکھی وہ اس تلاش سے گزر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ اسے سمجھنا مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مشکل ترین کتابوں میں سے ایک ہے, اس لیے کہ وہ ان چیزوں کو ایک عام آدمی کے طور پر دیکھ رہا ہے, بلکہ اس چھوٹی سی کتاب میں وہ 29 بار کہتے ہیں کہ دنیا میں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ چیزوں کے روحانی پہلوؤں کو نہیں دیکھتے اور اگر آپ چیزوں کو صرف دنیاوی طور پر دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے جو آپ دیکھتے ہیں یہ وہی ہے. یہ وہ نہیں ہے جو ہمیں روحانی طور پر دیکھنا چاہیے, بلکہ یہ وہ ہے جسے ہم دنیاوی طور پر دیکھنا چاہتے ہیں. ہمیں وہی نظر آتا ہے. وائز 10 باب کی 19 آیت میں وہ کہتا ہے, اور روپے سے سب مقصد پورے ہوتے ہیں. اور روپے سے سب مقصد پورے ہوتے ہیں. وہ یہ لکھتا ہے, روپے سے سب مقصد پورے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہوں گے یہ بائبل میں نہیں ہو سکتا, لیکن جی ہاں یہ بائبل میں ہے. سلیمان ایک عام آدمی کی طرح دیکھ رہا ہے, صرف دنیاوی طور پر چیزوں کو دیکھ رہا ہے. وہ کہتا ہے کوئی بھی مسئلہ کیوں نہ ہو, تھوڑا سا پیسہ اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے, بس تھوڑا سا پیسہ. اب یسوع مرکز 4 باب میں دولت کی فریب کاری کے بارے میں بات کرتا ہے. یسوع کہتا ہے کہ دولت کا فریب اور چیزوں کا لالچ داخل ہو کر کلام کو دبا دیتے ہیں. آپ جانتے ہیں عام طور پر اب گرجا گھر میں کہتے ہیں خدا کا کلام سب سے طاقتور ہے, اور ہر کوئی کہتا ہے ہاں. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کوئی ایسی چیز ہے جو خدا کے کلام کو دبا سکتی ہے تاکہ خدا کا کلام پھل نہ لائے؟ اور یسوع نے دولت کی فریب کاری کا ذکر کیا. آپ دیکھتے ہیں پیسہ بتاتا ہے کہ یہ دولت کا فریب ہے. یہ کہتا ہے اگر آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا تو آپ مطمئن ہوتے, بلکہ اگر آپ کے پاس زیادہ روپے ہوں تو آپ زیادہ محفوظ ہوتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس زیادہ روپے ہوتے ہیں تو آپ کو فرق نہیں پڑتا کہ مہنگائی کیا ہے, آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حادثہ ہو جائے. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس مزید پیسہ ہوتا تو آپ زیادہ خوش رہتے. اگر آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا تو آپ کچھ اور ہوتے, آپ کی زیادہ تعریف کی جاتی, آپ اہم ہوتے. اس کے علاوہ آپ کو تکلیف نہیں ہوتی اور آپ کی زندگی کے تمام مسائل ختم ہو جاتے. آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا تو آپ دوسرے لوگوں سے زیادہ بہتر ہوتے, کیونکہ پیسہ آپ کو بہتر بناتا ہے. آپ کے پاس جتنے زیادہ پیسے ہوتے اس بات کا ثبوت ہوتا کہ آپ اتنے ہی بہتر انسان ہیں. ہر ایک چیز جھوٹ ہے, دولت کی فریب کاری. تو سلیمان کہتا ہے روپے سے سب مقصد پورے ہوتے ہیں, لیکن پیسہ ایک ایسا وسیلہ ہے جو آپ کو خوشی اور مقصد کے علاوہ سب کچھ دے سکتا ہے, اور یہ آپ کو جنت کے علاوہ کہیں بھی لے جا سکتا ہے. یہ آپ کو بڑا بستر آپ کے پسندیدہ گدے کے ساتھ تو دے سکتا ہے, مگر رات کی اچھی نیند نہیں دے سکتا. یہ آپ کو مہنگی ترین گھڑی تو دے سکتا ہے لیکن وقت نہیں دے سکتا. یہ آپ کو عہدہ تو خرید کے دے سکتا ہے مگر عزت نہیں دے سکتا. یہ آپ کو خون تو خرید کے دے سکتا ہے مگر جان نہیں. یہ آپ کی جنسی خواہشات تو خرید کے دے سکتا ہے مگر محبت نہیں دے سکتا. دیکھیں پیسہ ہر مقصد پورا نہیں کر سکتا, بلکہ بائبل بتاتی ہے کہ پیسہ اکثر تکلیف کا باعث بنتا ہے. پہلا تموتیس اس کا 6 باب اس کی 9 آیت میں کہتا ہے, جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں, دوسرے ترجمے میں کہتا ہے بس یہ انتہائی خواہش تھی, ان کا مقصد اور ان کی نیت ہے کہ میں بس دولت حاصل کرنا چاہتا ہوں. لیکن جو
दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती है। अब मैं यहाँ शुरू से कहना चाहता हूँ, पैसा बुरा नहीं है। पैसे की मोहब्बत तमाम बुराइयों की जड़ है। लेकिन पैसा नहीं, आपके पास जितना ज्यादा पैसा है आप उतना ही वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपका दिल करता है। कोई है जो इस पैसे का इस्तेमाल कर सकता है, वो इन पैसों से मंशियात खरीद सकता है। कोई और शायद इनको दहशतगर्दी की माली मुआवनत में खर्च कर सकता है, जज को रिश्वत देने के लिए, इस काते अमल कराने के लिए और जिन्स खरीदने के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इन पैसों से अफ्रीका में पानी का कुआं खोद सकते हैं और हजारों लोगों की पानी की जरूरत का ख्याल रख सकते हैं। आप उन खवातीन की देखभाल के लिए घर बना सकते हैं जो जिनसी स्मगलिंग में इस्तेमाल होती हैं। इन पैसों से आप अफगानिस्तान में सैकड़ों बच्चों को बचा सकते हैं जिन्हें दहशतगर्द बनने की तरबियत दी जाती है और उनके सामने इंजील को पेश कर सकते हैं। आप उन अकेली माओं की मदद कर सकते हैं जो अकेले अपने बच्चों की देखभाल करती हैं। जो शख्स भूखा है उसके लिए खाना खरीद सकते हैं। उन पैसों से आप मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। लेकिन आपके दिल में क्या है वो बताएगा जो आप उस पैसे से करते हैं। पैसा बुरा नहीं है, इसमें कोई इखलाक नहीं है। और जब आप इसे हासिल करते हैं तो ये आपके दिल में पहले से जो कुछ है उससे और ज्यादा करने की इजाजत देता है। पैसा सेहत नहीं खरीद सकता, ये अमन नहीं खरीद सकता, ये आपकी जिंदगी में गुनाह की गिरफ्त को नहीं तोड़ सकता, ये किसी का दिल नहीं खरीद सकता, मोहब्बत या इज्जत नहीं खरीद सकता, ये टूटे हुए दिल को ठीक नहीं कर सकता, ये अहमक को अकल नहीं दे सकता। और सुलेमान ये कहता है कि कहर के दिन माल काम नहीं आता। क़यामत के दिन आपके पास जो भी पैसे थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपको रिहाई नहीं देगा। अब यीशु कहता है यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। तो हमने पैसे को लेकर सुलेमान की बसीरत के बारे में थोड़ी सी बात की है। वो अपने जमाने का अमीर तरीन इंसान था। वो यीशु के अलावा सबसे अक्लमंद आदमी था। वो अपने जमाने का कामयाब शख्स था। लेकिन यीशु कहता है यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। तो यीशु के पास पैसे को लेकर कुछ कहने को था और मैं उनमें से सिर्फ कुछ के बारे में बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं यीशु की तमसीलों का जिक्र करना चाहता हूँ। उसकी 45% तफसीलें पैसे और माल से मुताल्लिक है, क्योंकि वो जानता था ये वो चीज है जिसकी हमें सबको जरूरत है। हमें जिंदगी में तबादला करने के जरिए की जरूरत है और पैसा और माल ये हमारे तबादले का जरिया है। इसके जरिए हम तबादला कर सकते हैं। यीशु जानता था कि पैसा हमारी रोजमर्रा की जरूरत का हिस्सा है, पर बेईमान लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो यीशु ने हमें बताया कि इसका हम सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। पैसे का इस्तेमाल करना जाहिर करता है कि हमारे अंदर की ख्वाहिशात क्या हैं। मैं 45% यीशु की मिसालें आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु ने माल और पैसे के लिए जो मिसालें दी हैं वो क्या हैं और हमें क्या जाहिर करती हैं। आपके पास जो रुपया है आप उसका अच्छा तबादला कर सकते हैं, आप उसका दुरुस्त इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत सारे तरीकों से। यीशु मत्ती की इंजील के 16वें बाब की 26वीं आयत में कहता है, और अगर आदमी सारी दुनिया हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा? यह आदमी अपनी जान के बदले में क्या करेगा? यीशु जानता था कि जो आप और मैं देखते हैं वो सब आर्जी है, अबदी नहीं। पतरस की किताब कहती है, अजराम फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे। हर वो चीज जिसे आप और मैं आज देखते हैं और जो हमारे लिए कीमती है, असल में वो आर्जी है। लेकिन आप हमेशा के लिए रहेंगे। जब खुदा ने इंसान को बनाया तो उसने इंसान के नथनों में जिंदगी का दम फूका तो वो एक लाफानी रूह बन गया। आप कहते हैं इसका क्या मतलब है, एक लाफानी रूह? खैर, अब्दी होने का मतलब है कि आपकी कभी इब्तिदा नहीं थी और आपका कभी खात्मा नहीं होगा। लफानी होने का मतलब है कि आपकी एक इब्तिदा है लेकिन खात्मा नहीं है। जब खुदा ने इंसान में जिंदगी का दम फूका तो आप एक लाफानी रूह बन गए। एक दिन था जब आपकी पैदाइश हुई थी, लेकिन एक दिन ऐसा कभी नहीं आएगा जब आपका वजूद खत्म होगा, क्योंकि आप कहीं हमेशा हमेशा के लिए रहने वाले हैं। खिजा के पक्के पत्तों की तरह आसमान से सितारे गिरने के बाद आप हमेशा जिंदा रहेंगे। लेकिन जो कुछ हम देखते हैं वो सब आरसी है। तो यीशु कहता है, तुम सब लाफानी हो, चीजें आरजी हैं।
तुम सब तमाम चीजों से ज्यादा कीमती हो। यीशु कहता है कि अगर आपको पूरी दुनिया इसके इर्द गिर्द एक बाड़ के साथ मिल जाए और आप इसके मालिक बन जाएं, वो कहता है कि यह आपकी रूह के काबिल नहीं होगा। तो इसके साथ हम यहाँ जानते हैं कि हमें खुदा और लोगों से प्यार करना है और चीजों को इस्तेमाल करना है, लेकिन बदकिस्मती से हम में से कुछ ऐसे हैं जो चीजों से प्यार करते हैं और लोगों को इस्तेमाल करते हैं। यीशु कहता है नहीं नहीं नहीं, लोग सबसे कीमती असासा हैं। ये वो हैं जिनकी खुदा सबसे ज्यादा कदर करता है। अब यीशु लूका के 16वें बाब में ये कहता है कि और अगर तुम बेगाने माल में दयानतदार ना ठहरे तो जो तुम्हारा अपना है उसे कौन तुम्हें देगा। अब यहां यीशु बता रहा है कि जो कुछ हमारे पास है वो हमारा नहीं है। बाइबल ज़बूर 24 में कहती है जमीन और इसकी मामूरी खुदावन की ही है, जहान और उसके बाशिंदे भी, सब कुछ आखिरकार खुदा का ही है। लेकिन आप कहते हैं नहीं, मेरा नाम उन्वान पर है। हाँ, लेकिन जब आप मर जाएंगे तो हम इस उन्वान पर किसी और का नाम रख देंगे। तो हमें याद रखने की जरूरत है, बिलाखिर हर वो चीज जिसे हम समझते हैं कि हमारी है, दर हकीकत वो खुदा की है और हम मुख्तार हैं। याद रखें, बाइबल कहती है मुख्तार में ये चीज देखी जाती है कि दयानतदार निकल। तो इसका मतलब ये है कि आप और मैं उस चीज के मालिक नहीं हैं, हम इसे खुदा के लिए संभाल रहे हैं और हमें इसे इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए जिस तरह खुदा चाहता है कि हम इस्तेमाल करें। अब लूका की 9वीं आयत में पढ़ने जा रहा हूं जिसने मेरी जिंदगी पर गहरा असर डाला। यीशु ने कहा, और मैं तुमसे कहता हूं कि नाराजगी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो, ताकि जब वो जाती रहे या आप जब मर जाते हैं तो आप में से कितने लोग जानते हैं कि इंसानों में अमवात की शरह 100% है। तो यीशु ने कहा कि तुम जानते हो जब तक खात्मा ना हो और जब तक मैं वापस ना आऊं तुम्हारा जिस्म खत्म होने वाला है, मरने वाला है। जब आप नाकाम हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो ये तुमको हमेशा के मस्कनों में जगह दे या रिहाइश गाहें। यहाँ यीशु क्या कह रहा है? वो कहता है कि आज अपना पैसा सिर्फ इस जिंदगी के लिए नहीं है, बल्कि इसे अगली जिंदगी के लिए इस्तेमाल करो, क्योंकि आज आप अपने पैसों से वो काम कर सकते हैं जो आपको अब तक मुतासिर करेगा। वो कहता है कि वहां ऐसे लोग होंगे जो जन्नत में आपका इस्तकबाल करेंगे, वहां ऐसे लोग होंगे जो आपके दोस्त बन जाएंगे। वो लोग होंगे जिनसे आप मिलते हैं। आप जानते हैं, मैं आपको बरसों से कह रहा हूं, आपको दौड़ने की जरूरत है, क्योंकि जब आप जन्नत में पहुंचेंगे तो आसमान में सब लोग आपका पीछा करेंगे और वो कहेंगे कि यार तुमने इस नजराने में बोया और मैं बच गया, मेरा खानदान बच गया, मैं निजात पा गया, मैं आज जन्नत में हूं तुम्हारे किसी काम की वजह से। फिलिपियों 4 बाब में पौलुस रसूल की कलीसिया से इस बारे में बात कर रहा है कि वो बाहर जा रहा है और गिरजाघर शुरू कर रहा है। वो कहता है, और ए फिलिपियो, तुम खुद भी जानते हो कि खुशखबरी के शुरू में वो गिरजाघर शुरू करने जा रहा है। जब मैं मकदूनिया से रवाना हुआ तो तुम्हारे सिवा किस कलीसिया ने, किस चीज में तुम्हारे सिवा किसी कलीसिया ने लेने देने के मामले में मेरी मदद ना की। अब वो कहता है कि मैं तबलीग के लिए निकला हूं, लेकिन आप हदिया भेज रहे हैं और वो हदिया आपको मेरा साथी बनाता है। तो 25 साल पहले हमारा एक दोस्त ट्रकों में माल भर कर लाने और ले जाने के कारोबार में था। वो दोस्त हमारे पास आया और उसने कहा कि आप जानते हैं, मैं उस खास शख्स के लिए बरसों से काम कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने ट्रकों में माल भरने की कंपनी शुरू कर रहा हूं और मुझे कुछ मालियत की जरूरत है। और उसने कहा कि क्या आप सरमायाकारी करना चाहेंगे? खैर, हमारे पास पैसे तो नहीं थे, इसलिए हमने अपना घर गिरवी रख दिया, जितना हम कर सकते थे। पैसा मिला और ट्रकों की माल भरने की ट्रकों की कंपनी में लगा दिया। आप कहते हैं क्या हुआ? तो ये है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब मैं उसका साथी था और हमारे पास उस कंपनी का 30% हिस्सा था। मैं ट्रकों में माल भरने के बारे में कुछ नहीं जानता था। अब आप कहते हैं, तो आप कंपनी में करते क्या थे? कुछ भी नहीं, लेकिन मैं फिर भी उस कंपनी में शरीक था। आप कहते हैं, आप क्यों शरीक थे? क्योंकि
आपने पैसे डाले हैं। वही बात पौलुस यहाँ अंजील में कह रहा है। वो कहता है जब तुम खुदा की बादशाही में होते हो तो तुम शराकतदार बन जाते हो। वो पैसा जो भी करता है वो कहता है ये आपके आसमानी हिसाब में जा रहा है। जब आप अपने हाथ से कुछ देते हैं तो खुदा अपने हाथ से उसमें कुछ दे देता है। लेकिन बरकत सिर्फ उस जिंदगी के लिए नहीं है। लेकिन अगर उस जिंदगी में कोई बरकत नहीं है, मैं फिर भी ठीक हूं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि पौलुस कहता है कि आपके आसमानी हिसाब में कुछ है। यीशु कहता है अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो जहां कीड़ा और जंग खराब करता है और जहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं। आप में से कितने लोग जानते हैं कि दुनिया में चीजें गलत हो सकती हैं, चाहे महंगाई हो, चाहे मैशत गिरे, चाहे चोरी हो। कितने लोगों ने कभी किसी चीज में सरमायाकारी की और वापस कुछ नहीं मिला? ये हमेशा इस तरह नहीं होता जिस तरह आप सोचते हैं कि ये ऐसा होगा। लेकिन जब आप खुदा की बादशाही में होते हैं तो यीशु कहता है कि आपके खोने का कोई रास्ता नहीं, और उसने देने और वसूल करने का कहा। तो अक्सर हम सोचते हैं कि हम दे ही रहे हैं, लेकिन हर बार जब आप होते हैं तो बाइबल कहती है कि आप काटेंगे जो आपके हाथ में है, आप उसे दें, खुदा आपको वो नेमत देगा जो उसके हाथ में है। दरअसल अगली आयत में पौलुस कहता है बल्कि ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे हिसाब में ज्यादा हो जाए, बल्कि ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे हिसाब में ज्यादा हो जाए। लिहाजा जब हम खुदा की बादशाही में होते हैं तो हम शराकतदार बन जाते हैं। और यीशु ने कहा कि हमें अपने लिए आसमान में खजाने जमा करने की जरूरत है। 2 तीमुथियुस 3 बाब और उसकी 10वीं आयत। यीशु हमें बताता है कि पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है। इस पैसे के वसीला से हम किस तरह अपने लिए आसमान में खजाना जमा कर सकते हैं। तीमुथियुस 3 बाब उसकी 10वीं आयत। लेकिन तूने तालीम, चाल चलन, इरादा, ईमान, तहम्मुल, मोहब्बत, सब्र, सताए जाने और दुख उठाने में मेरी पैरवी की। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? उसने कहा तीमुथियुस तुम मेरी जिंदगी का मकसद जानते हो। हम में से कुछ के लिए हमारा मकसद सिर्फ खुद के बारे में है। यही लुत्फ है, यही खुशी है, यही सलामती है। लेकिन यीशु ने हमें बताया कि हमारा मकसद असल में क्या होना चाहिए। वो कहता है कि बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी राजबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। अब वापस लूका 16 बाब की 11वीं आयत में यीशु पैसे के बारे में बात कर रहा है। बस जब तुम नाराज दौलत में दयानतदार ना ठहरे तो हकीकी दौलत कौन तुम्हारे सुपुर्द करेगा? वो कहता है जब तुम नाराज दौलत में दयानतदार ना ठहरे तो हकीकी दौलत कौन तुम्हारे सुपुर्द करेगा? मैं कैसे कह सकता हूं कि जब भी आपके हाथ में कुछ आता है इसका कुछ हिस्सा आपके लिए होता है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा आपके लिए नहीं होता। वो हिस्सा आपके लिए, आपको बाइसे बरकत बनाने के लिए होता है। ये उन लोगों के लिए होता है जो आसमान में आपके दोस्त होंगे। ठीक है, मलाकी 3 बाब की 10वीं आयत में लिखा है पूरी दहय की जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। अब कोई कहता है वो 10वां हिस्सा ये पुराना अहद है। दरअसल ये अहद से पहले है, ये अहद के दौरान है। और यीशु की तालीम और नए अहदनामा की तालीम को देखें तो ये अहद के बाद है। हमें पहले 10वां हिस्सा देना है और इसके साथ खुदा की इज्जत करनी है। दरअसल मैं इसे इस तरह कहना चाहता हूं कि जब भी आपके हाथ में कुछ आता है तो वो आपकी आजमाइश होती है। हम उसके साथ क्या करें, क्योंकि पहले हमें उसमें से 10 लेने हैं और उसे बोना है। अब जब खुदा बनी इसराइल को मिस्र से निकाल रहा है तो खुदा फिरौन के दिल का इम्तिहान ले रहा है। और रास्ते में कितनी आफतें आईं, किसी को याद है? ऊंची आवाज में कहें 10। मूसा पहाड़ पर चढ़ा और लोगों को आजमाने के लिए कुछ अहकाम लेकर नीचे आया। वैसे वो कितने थे, इसे भी थोड़ा ऊंचा बोले। 10। खुदा ने कहा कि तुमने मुझे 10 बार बियाबान में आजमाया है। लाबन ने याकूब को आजमाया। बाइबल कहती है कि उसने अपनी मजदूरी 10 बार बदली। यीशु उन कवारियों के बारे में कहानी सुनाता है जिनका इम्तिहान लिया गया, जिनमें 5 अक्लमंद 5 बेवकूफ थी। वैसे वहां पर कितनी थी, जरा ऊंचा बोलें। 5 अक्लमंद और 5 बेवकूफ। 10। दानियल की किताब में दानियल ख्वाजा सरा के पास जाता है और कहता है हमें वो खाना नहीं चाहिए जो बुतों को पेश किया जाता है।
हमें सिर्फ सब्जियां चाहिए। क्या आप हमें आजमाएंगे? कितने दिन? हमारी कितनी आजमाइश लेंगे और कितने दिन? मेरे साथ बोलें। 10 दिन। और फिर यकीनन यीशु कहता है, देखो इब्लीस तुम में से बास को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। 10 बाइबल में 10 आजमाइश की तादाद है। बाइबल में आजमाइश की तादाद है। और जब भी मेरे हाथ में कुछ आता है ये एक आजमाइश होती है। क्या ये सब कुछ अपने लिए ले जाऊंगा या मैं इसका एक हिस्सा ले जाऊंगा? और क्या मैं इसे बोने जा रहा हूं? ये एक आजमाइश है। यीशु ने कहा, जब तुम नाराज दौलत में दयानतदार ना ठहरे, वो कहता है कि तुम्हें हकीकी दौलत ना सौंपी जाएगी। मैं ये कहूंगा कि हकीकी दौलत आज रूहानी चीजें हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि यीशु उसके बारे में बात कर रहा है जो आजकल हो रहा है। मुझे यकीन है कि वो अब्दियत के बारे में बात कर रहा है, जहां हम ये सुनना चाहते हैं कि शाबाश अच्छे और वफादार बंदे। ठीक है। यीशु कहता है, कोई आदमी 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। अब उसने ये नहीं कहा कि ये मुश्किल होगा, बल्कि वो ये कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते। वो कहता है एक या दूसरा, दोनों एक साथ नहीं। सबसे झूठा खुदा पैसा है। और फिर ये कहता है कि मैं तुम्हें महफूज बनाऊंगा, मैं तुम्हें अहम बनाऊंगा, मैं तुम्हें मकसद दूंगा, मैं तुम्हें कदर दूंगा, मैं तुम्हें कुछ बनाऊंगा और तुम दूसरों से बेहतर होगे। यीशु कहता है, खबरदार अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं। बरसों पहले मैंने बम्पर पर एक स्टिकर देखा था। शायद आप में से आधे लोगों ने वही बम्पर स्टिकर देखा होगा। वो ये कहता है कि उसने कहा, जितना कमा सकते हैं कमाएं। नहीं, जिंदगी इसके बारे में नहीं है कि हम कितना जमा करते हैं, क्योंकि यीशु कहता है आपकी जिंदगी नहीं है ये वो जिंदगी नहीं है जो आपको तकमील देती है। ये वो नहीं है जो आपको मकसद देती है। ये वो नहीं है जो आपको खुशी और सुकून देती है। चीजें पूरी नहीं कर सकती, चीजें आपको जिंदगी का मकसद नहीं दे सकती, वो आपको कदर नहीं दे सकती, वो आपको किसी से बेहतर नहीं बना सकती, वो आपको गुनाह और गुलामी से निजात नहीं दे सकती। और फिर सुलेमान, वो तुम्हें क़यामत के दिन निजात नहीं दे सकती। यीशु कहता है, अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो जहाँ कीड़ा और जंग खराब करते हैं और जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहाँ ना कीड़ा खराब करता है ना जंग, और ना वहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। यीशु ने कहा, आज आप अपनी अब्दियत को मुतासिर करने के लिए कुछ कर सकते हैं। उसने कहा, आज आप अपने लिए जन्नत में खजाने जमा कर सकते हैं। देखिए हमें क्या होने की जरूरत है। यीशु कहता है कि हमें जिंदा पानी का दरिया होने की जरूरत है जो हमसे बह रहा है। हमें एक जखीरा नहीं होना चाहिए, एक मुर्दा समंदर जो हासिल करता है। हमें एक गलील का समंदर होना चाहिए जो बह रहा है। दरअसल खुशहाली का मतलब बरकत बनना है। ये एक बरकत बनना है। और अक्सर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ मेरे लिए है। नहीं, ये आपके बारे में नहीं है, ये मेरे बारे में नहीं है। सुलेमान कहता है, रुपए से सब मकसद पूरे होते हैं। और एक बार फिर, ये दवा खरीद तो सकता है पर सेहत नहीं। एक मकान लेकिन घर नहीं, साथी लेकिन सच्चा दोस्त नहीं, तफरीह लेकिन खुशी नहीं, खाना लेकिन भूख नहीं, एक बड़ा बिस्तर लेकिन एक अच्छी नींद नहीं, एक सूली मगर निजात दहिंदा नहीं, एक अच्छी जिंदगी लेकिन अब्दी जिंदगी नहीं। मुख्तसर ये कि पैसे की ताकत इंतहाई महदूद है और बहुत ही धोखा देने वाली होती है। हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि बाइबल कहती है कि हमारे पास हमेशा की जिंदगी है। बहुत से लोग फर्ज करते हैं कि मैं खुदा के बारे में जानता हूँ और मैं खुदा के साथ हूँ और मुझे उम्मीद है कि जब मैं मर जाऊंगा तो मैं जन्नत में जाऊंगा। बाइबल कहती है कि निजात आपके पास है, आपको बस जानने की जरूरत है कि आपको माफ कर दिया गया है। जान लो कि आप खुदा के साथ हैं। आप कहते हैं कि मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि खुदा कभी झूठ नहीं बोल सकता। वो कहता है कि जो कोई खुदा का नाम लेगा निजात पाएगा।
اور اگر آج آپ خدا سے دور ہیں اور آپ نہیں جانتے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں خدا کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں، تو میں آپ کے ساتھ ابھی یہ دعا کرنا چاہتا ہوں۔ میں خداوند کا نام پکارنا چاہتا ہوں جس طرح بائبل ہمیں بتاتی ہے، اور بائبل کہتی ہے کہ تو نجات پائے گا۔ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنے دل سے اس دعا کو بلند آواز میں دہرائیں، کہیں کہ اے خدا، مجھے یقین ہے کہ یسوع صلیب پر مر گیا، مجھے یقین ہے کہ اس کے خون نے میرے گناہوں کی قیمت ادا کی، مجھے یقین ہے کہ وہ دوبارہ جی اٹھا اور میں اسے اپنا سارا دل اور ساری جان دیتا ہوں۔ میں اپنے پاس پیچھے کچھ بھی نہیں رکھتا، میں ہر روز یسوع کے لیے جینے والا ہوں۔ وہ میرا بادشاہ ہے، وہ میرا خداوند ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری دعا کو سنا، مجھے معاف کر دیا گیا ہے، میں خدا کے ساتھ ہوں، میں جنت کے راستے پر ہوں۔ آمین۔ آپ جانتے ہیں خدا نے آپ کی دعا سنی ہے اگر آپ نے اپنے دل سے کی ہے، آپ خدا کے ساتھ درست ہیں۔ اب میں نے ایک کتاب لکھی ہے تاکہ آپ کو روحانی طور پر بڑھتے رہنے میں مدد ملے۔ میں یہ کتاب آپ کو مفت بھیجنا چاہتا ہوں۔ آپ کی اسکرین پر معلومات موجود ہیں، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو مفت فراہم کریں گے۔ ہم آپ کے لیے نعمت بننا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے شکریہ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اگر آپ نے ابھی پاسٹر ڈوین کے ساتھ مل کر دعا کی ہے تو آپ نے اپنی زندگی کا بہترین فیصلہ کیا ہے۔ ہم آپ کے لیے بے حد خوش ہیں۔ جیسا کہ پاسٹر ڈوین نے کہا، ہمیں خوشی ہوگی کہ ہم اپنی کتاب آپ کو فراہم کریں جو بالکل مفت ہوگی، جس کا نام ہے یور نیو لائف۔ آپ ہماری ویب سائٹ walkingbyfaith.tv پر لاگ ان کریں۔ اس کتاب کی کاپی آپ کو وہاں سے بھی مل جائے گی۔ آپ اس کی آڈیو بک بھی یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ یہ تمام چیزیں ہماری ایپ پر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب مفت ہے اور آپ کے سیکھنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ بھی۔ واکنگ بائی فیتھ دنیا بھر میں لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرنے کا کام تیزی سے کر رہا ہے۔ جب آپ خدا کی بادشاہی میں بیچ بونے کا انتخاب کرتے ہیں تو شاید یہ پیسہ آپ کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے، لیکن اس سے آنے والی برکت ابد تک آپ کے ساتھ رہے گی۔ اگر آپ ہمارے ساتھ شراکت دار بننا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس 3 طریقے ہیں جس سے آپ دے سکتے ہیں۔ پہلا، WBF گفٹ کو 364881 پر ٹیکسٹ کریں۔ دوسرا، walkingbyfaith.tv/gift پر جائیں، یا تیسرا، ہماری ایپ پر دیے ہوئے آئیکن پہ کلک کریں۔ ہم آپ کے ساتھ جڑنا پسند کریں گے۔ جب آپ QR کوڈ کو اسکین کرتے ہیں تو آپ ہماری ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں کی درخواست بھیجیں، ہماری ہفتہ وار عقیدیت کو دیکھیں اور جڑے رہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ حیرت انگیز ہفتہ گزاریں۔ اگلی بار پھر ملیں گے۔ شکریہ۔